that a champion team is denied to get a trophy. I mean that to a hard-earned one. It's not like आसानी से हो गया सब, but it was a hard-earned tournament. We were here since fourth, played a game today, two back-to-back good games in 2 days. I feel we deserved it, and I can't say anything more. I think I've summed it up really well. And if you tell me about the trophies, my trophies are sitting in my dressing room. All the 14 guys with me, all the support staff. Those are the real trophies who I have been big fan of throughout this journey of Asia Cup since we came here and we played this tournament. We started our preparations. I think those are the real trophies, real moments, which I'm taking back as lovely memories, which will stay with me forever going forward. And that's all. पाकिस्तान को लगातार 3 मैच हराने के बाद ट्रॉफी नहीं मिली। फिर आगे क्वेश्चन है, इस जीत को लेके आप क्या कहेंगे? ट्रॉफी नहीं मिली, फिर भी ये जीत कितनी इंपॉर्टेंट है? जीत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखा होगा मैच खत्म होने के बाद वो बड़ी स्क्रीन पे लिख के आया था, इंडिया एशिया कप 2025 चैंपियंस। अब इससे अच्छा अब क्या ही देखना है। सब जगह जितने भी बोर्ड्स लगे हुए थे सब पे चैंपियन लिखा हुआ है, 2025 एशिया कप, और आप खेलते हो उसी चीज़ के लिए हो। एंड आई एम श्योर एवरीवन अग्रीज कि देखो इसने तो हाँ भी बोल दिया है। तो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट मोमेंट, ग्रेट जर्नी, ग्रेट कैंपेन फॉर अस एज अ टीम, एंड आई एम श्योर सपोर्ट स्टाफ विल ऑल्सो अग्री, and we had a lot of fun. Surya, hi, Abhishek, congratulations. Question to you, उससे भी congratulatory. पूछ लो कोई। Congratulatory messages are already pouring in for the team. The Prime Minister has also tweeted, and I'm going to read his tweet. He says, Operation Sindoor on the games field, outcome is the same. India wins. Congrats to our cricketers. How do you respond to this? And just, if Abhishek can also sum it up, playing in this tournament and playing so well, back-to-back 50s for you, just your experience and your answer to this. I think अभी तक I have not followed social media properly after the game. We were busy on the ground only. We were waiting for more than an hour and a half to have our celebrations. But then that's completely fine. I'm sure whole country will be happy and enjoying and having smile on their faces. And that's what we play for. Give them smile and inspiration to many. And I'm sure he also must have something to say on that, as the question has been split. You want to say something? Sure. I think obviously we had a plan to win this tournament, and last में आगे we didn't get the trophy, but still we won the tournament. That was our plan. ट्रॉफी उठाने का तो obviously सबका होता है, but we actually got a trophy जो सूर्य भाई लेके आए थे. We felt it, and कोई बात नहीं, जीत गए, that's enough. मेरे हाथ में दिख गई थी ना। हाँ बाजी, वेट भी हमें पता था कितना है, तो हाँ जी, तो हम सब टीममेट्स ने वी फेल्ट इट, बिकॉज विनिंग द टूर्नामेंट इज मोर देन दैट. तो ऑब्वियसली जो हमारे चेहरे पे स्माइल्स है और जो ड्रेसिंग रूम में जो माहौल है, दैट ओनली कम्स आफ्टर विनिंग द टूर्नामेंट. तो दैट्स व्हाट मैटर्स. सो दैट्स इट. Surya, it's been a difficult campaign with so many off-field developments holding sway. As a captain, how much did it take out of you, and what did you have to do to sort of keep yourself in the moment as far as cricket is concerned? I feel it was not that difficult. Boys took it in their stride. They were really happy with the way the campaign was going. Since day one, I've been telling them only one thing: let's just focus on cricket on the ground. And when we go to the practice sessions, let's enjoy what we are doing. Do the same things what we want to do in the game. I think boys took it in a positive way, and whenever we came for every game, we were very, very focused. So, Surya, unbeaten run throughout the tournament. What is the message to the Indian fans, especially on this dominant show, and a journey that will continue? What is it, your opinion about? I feel unbeaten games, unbeaten tournament. Of course, it's a great feeling. I'm sure everyone back home will be very, very happy with the way we played this tournament, and everyone put their positive step forward. And I would also like to thank BCCI in this. I think it's very important to have a strong base. When we play like this, you forget everything. People who work behind the scenes. So people working at BCCI, having center of excellence at Bangalore, I think all these places adds up slowly to each and every player. They go there, have a good preparation. Before coming here, every player came there for 2 to 3 weeks, as they knew they haven't played a lot of cricket together. So they came there, they practiced really hard, and you must have seen
but the way they delivered on the ground and at the end of the tournament. So really happy with that. अभिषेक इधर अभिषेक जब नमस्कार अभिषेक जब बचपन से कोई क्रिकेटर खेलना चालू करता है तो देश के लिए खेलने का एक सपना देखता है और बाद में इंडिया पाकिस्तान का लोगों से सुनते आए रहे हो आप और सचमुच खेलना वो प्रेशर में इतना अच्छा परफॉर्म करना ये सपना है हकीकत है आपके लिए क्या है ये टूर्नामेंट क्योंकि मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी हो गए हो हकीकत तो है बिल्कुल बट एक चीज़ है सर कि मुझे जब भी मैं टीम में आया हूँ मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं है कि ये बहुत प्रेशर मैच है या कोई ऐसा हम हर एक मैच को इक्वली हमने प्रिपेयर किया था ऐसे ही क्योंकि जैसे मैं खेलता आ रहा हूँ आई फेल्ट कि मुझे जैसे सूर्यबाजी और जीजी बाजी ने दोनों ने आई फील कॉन्फिडेंस दिया क्योंकि जब आप ऐसा खेलना चाहते हो तो आपको होता है कि आप थोड़ा ऊपर नीचे होते हो तो ऑब्वियसली अगर आप ऐसे हाई रिस्क पे खेलना चाहते हो तो फेलियर्स भी आते हैं बट जैसे इन्होंने उस टाइम पे मुझे हैंडल किया उस टाइम में मेरे से बातें की आई थिंक उसी वजह से आज हम ये स्पेशली मैं ऐसा खेल पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि आपको ऐसे सपोर्ट होती है टीम के साथ और एक्चुअली में हम ऐसा इंटेंट ऐसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहते थे शुरू से ही अब चाहे आगे कोई भी ऑपोजिशन हो हमने यही प्लान किया था कि हम अपना बेस्ट देंगे और ऐसे ही खेलेंगे हाय सूर्या अनस गोंदल न्यूज़ वन टीवी से अनस गोंदल न्यूज़ वन टीवी से सवाल ये है कि आज आप चैम्पियन बने और अच्छी गेम खेली आपने लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे टूर्नामेंट में जो आपका बिहेवियर रहा पाकिस्तान टीम के साथ आपने हैंडशेक नहीं किया फिर आप ट्रॉफ़ी के लिए फ़ोटो सेशन आपने नहीं किया फिर आपने एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या समझते हैं कि आप इस पूरी क्रिकेट की तारीख में आप पहले कप्तान हैं जिन्होंने क्रिकेट के अंदर सियासत लेकर आए जी बोलना है नहीं बोलना है गुस्सा हो रहे हो आप सवाल पता ही नहीं चला आपका आपने 4 क्वेश्चन पूछ लिए एक टाइम Surya, hi. At what point in the build-up to this game did it emerge that Hardik will not be available? And secondly, if you can talk us through Shivam Dubey's performance because he had a tough role to play bowling those overs that Hardik bowls in the power play and then to play that innings with the bat. So just take us through these two. See, of course, he was very dejected after he got to know that he's not going to take part in the finals. Any player would love to be part of playing 11 when they're playing a final. And he got to know that yesterday he tried his best. Sports science team, they tried their best to have him on the ground, but sometimes it's way above all these things. So he tried his best, and also for Shivam Dube it was difficult, but he's been practicing bowling the new ball, old ball, bowling in the death overs as we are playing with playing with 8 batters and a lot of all-rounders in the side. So he took up that responsibility, and I've seen him with my domestic team Mumbai. He's delivered a lot with the ball also, and I was confident. Coach was confident that definitely deliver, and we were definitely not surprised the way he performed with the ball and also with the bat. With the bat, everyone has seen his ability. It was a perfect pressure situation, and he delivered it. So we've seen him in that situation, and we are very happy that he absorbed it and delivered it at such a lovely occasion. हाय सूर्या भाई, हाय अभिषेक। पहला सवाल आपसे सूर्या भाई कि क्या कहेंगे। अच्छा ठीक है सूर्या भाई, पूरा कंट्री सेलिब्रेट कर रहा है लेकिन विदाउट ट्रॉफी देखकर वो भी अचंभित हैं। आप उनको बैक होम क्या मैसेज देना चाहेंगे आफ्टर विनिंग दिस एशिया कप? आपने देखी नहीं ट्रॉफी? नहीं यार, मैं तो लेके आया ना, टीम बैठी थी पोडियम पे और अभिषेक और शुभमन ने तो ऑलरेडी डाल दी फोटो के साथ, ट्रॉफी के साथ फोटो। इतनी अच्छी लग रही है। देखिए कैसा है कि इतना अच्छा कैंपेन होने के बाद, इतना अच्छा क्रिकेट खेलने के बाद तो सेलिब्रेशन तो बनता है। आप अगर अब ड्रेसिंग रूम में आए नहीं आप हमारे तो पता चलता आपको माहौल कैसा है। कोई बात नहीं, आपको किसने रोका है, बट अच्छा सेलिब्रेशन था जो हम चाहते थे टूर्नामेंट में करना, बैटिंग से, बॉलिंग से, फील्डिंग से जोक्स अपार्ट, बट सब डिपार्टमेंट में हम जो करना चाहते थे वो हमने ट्राई किया करने के लिए। और देखिए आप जब टूर्नामेंट जीतते हो आप बहुत कुछ सीखते भी हो, तो हमने बहुत कुछ सीखा भी आज टूर्नामेंट जीतने के बाद कि हमको कहाँ कौन सी चीज़ों में इंप्रूव करना है। कभी कभी वो कारपेट के नीचे से निकल जाता है कि जीत गए तो सब भूल जाओ, बट सपोर्ट स्टाफ हमारे इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड है, उन्होंने बताया है कि कुछ चीज़ें हैं जिन्हें देखना है आगे गोइंग फॉरवर्ड, हाउ कैन वी इवन गेट मोर बेटर एज अ टीम, एज अ ग्रुप। और बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। मैंने सुना अभी
2-3 लोगों ने वीडियो भी दिखाई. मैंने अभी कुछ ज़्यादा फ़ोन खोला नहीं है अच्छे से, बट अच्छा लग रहा है. कंट्री सेलिब्रेट कर रही है, तो ऑब्वियसली इतने सारे फैंस हैं, इतने सारे लोग हैं, तो इट फील्स ग्रेट. ट्रॉफी इज़ फॉर देम. कैप्टन, आपने अभी बोला इम्प्रूवमेंट के काफ़ी सारे स्कोप हैं. आपके लिए थोड़ा बिटर स्वीट होगा, मे बी द फॉर्म, द काइंड ऑफ द वे यू स्टार्टेड वैसा नहीं हो पाया, स्टार्ट्स कन्वर्ट नहीं हो पाए. एंड फॉर अभिषेक, स्टार्ट ही नहीं मिला सर. स्टार्ट कन्वर्ट का हुआ, स्टार्ट ही नहीं मिला. so and for Abhishek, it's been a long journey, right? Under 19 World Cup, और काफ़ी सारे ऐसा कुछ लोग सीढ़ी चढ़ के आते हैं, कुछ लिफ्ट से आते हैं. आपने सीढ़ियाँ चढ़ी है. सो इफ यू टॉक अबाउट हाउ इट फेल्ट, बिकॉज इस टूर्नामेंट में आपका नाम हुआ, लाइक अभिषेक शर्मा हैज बिकम दैट फियर फैक्टर, अपोनेंट में भी, अपोनेंट की टीम्स में ज़्यादा. अरे कितना बड़ा सवाल है. पहले बोल दूं मैं पहले. अरे फॉर्म का पूछ रहे हैं, टेम्पररी है. अच्छा, फॉर्म का तो सर मुझे ऐसा लगता है कि देखो, मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि मैं नेट्स में क्या कर रहा हूँ, मैं अपने प्रिपरेशंस में कितना स्पॉट ऑन हूँ, वो सब चीज़ पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ. मैच पे आने के बाद सब कुछ ऑटो पायलट पे चलता है. और अगर आप बोल रहे हो आउट ऑफ फॉर्म का, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट आउट ऑफ फॉर्म, आई एम आउट ऑफ रन्स, आई फील. तो वो आ जाएंगे, आप प्रैक्टिस करते रहो, बाकी भगवान देख रहा है ऊपर से. अच्छे से करते रहोगे तो सब मिल ही जाएगा सही टाइम पे. अभी इन्होंने किया है, आगे क्या पता भाई. इनका सवाल तो बता दो एक बार वापस. नहीं, मुझे कोई नहीं याद है आपको? हाँ. वो कह रहे हैं कि आप सीढ़ी नहीं चढ़ के आए. नहीं, सीढ़ी चल के आए कहते हैं. अच्छा. सीधे नहीं, मैं सूर्यबाजी का पहले बोलना चाहता था, क्योंकि मैंने पर्सनली खुद फील किया है कि एज अ बैटर बहुत मुश्किल होता है जब आपके रन नहीं हो रहे होते, बट आप एज अ कैप्टन ऐसे प्लेयर्स को लेके चलना सबको. बट आई हैव सीन दिस क्वालिटी इन हिम, क्योंकि शुरू से जब से मैं आया हूँ, जब भी ये 100 भी करते हैं फिर भी वैसे ही हंसेंगे, वैसे ही सबसे बात करते हैं, और अगर आउट भी होते हैं जल्दी तो सबको साथ में लेके चलते हैं. तो आई फील दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी आई हैव सीन इन नॉट सो मेनी पीपल. तो मुझे भी ये सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि T20 स्पेशली आप ऊपर नीचे होता रहता है, बट आपको एक बैलेंस बना के कैसे टीम के साथ रहना है, सब इन्जॉय करना है. तो आई फील वो बहुत अच्छी चीज़ है पाजी आप में. अरे आपका सवाल का तो मेरा सवाल ये है कि ऑब्वियसली आपने फॉलो किया है अंडर 19, उसके बाद अब मौका मिला, तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे, क्योंकि सीधा कई होते हैं जिनको सीधा मिल जाता है, तो कई होते हैं जो सारा कुछ करके आते हैं. तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो ज़रूरत थी, क्योंकि एज अ प्लेयर अगर मैं सीधा आ जाता तो मुझे सब जो चीज़ें सीखने के लिए मिली नहीं मिलती. बट ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे काफ़ी चीज़ों में ज़्यादा टाइम मिला काम करने के लिए, जितने नॉर्मल काफ़ी प्लेयर्स को नहीं मिलता, मुझे ज़्यादा मिला. तो उसमें मैंने काफ़ी काम किया है कि एक अब जैसे T20 भी खेल रहा हूँ, तो मैं कैसे टीम में आ सकता था, किस चीज़ में मैंने ज़्यादा काम कर सकता था. एंड ऑब्वियसली ये तो अभी मुझे लग रहा है हमारी टीम की शुरुआत है, अभी बहुत आगे आगे होगा, कुछ मिरेकल्स होंगे. दादा आपकी आवाज़ आ रही है. ओके. So, question for you. While India won, will you say the sport lost? Because you did not get the trophy. This is unprecedented in the history of sport. None of us have ever seen that. We've seen irresponsible tweets from administrators. We've seen incitement and provocation every single day. India has won, but the sport has lost. I think you've said it all. India has won. So let's see on the positive side what good things have happened. I told in the beginning also when a gentleman, another Dada asked me कि आप जीते trophy नहीं मिली. I feel unbeaten in the tournament. Boys stepping up whenever needed. I think those are the small moments, small trophies which we won going forward into the World Cup leading year. And as I said earlier also, I have never seen this a team winning a tournament, hard-earned tournament, and not getting a trophy. We can't say we were disappointed, but if you see, we had a lot of smiles on our faces also, as we were on the ground enjoying the moment on the podium. Surya, my question is, you were part of the World Cup winning team as well, T20 World Cup. This isn't an ICC tournament, but with the kind of build-up that we had, the kind of stress and tension that was around, what does winning this particular trophy mean to you and the team?
I think you said ICC, only difference is one letter, that is ACC. Feels like, I mean, similar type of tournament. You play 6-7 games and then you go into the finals. I think what we wanted to achieve in this tournament, we've achieved it. There are a lot of things which we don't get to achieve in a bilateral tournament, but this was like a knockout tournament. As soon as we came into Super Force, I told the boys, let's play it as a quarterfinal, semi-finals, finals. So we played a semi-final type of game against Sri Lanka, and it was a perfect final. There are nerves, there is always responsibility and pressure, and I think it was a perfect final. Abhishek and Surya, first of all, many congratulations. What a fabulous tournament it has been for all of you. And Abhishek, it has made, I mean, you are superstar from star. सूर्या भाई आपसे ये पूछना चाहेंगे चेन ऑफ इवेंट्स हुआ क्या, मतलब हमें ऑफिशियली कुछ नहीं पता है कि आपको सब पता है? नहीं मतलब आप बता दीजिए क्या हुआ क्या और कैसे हुआ? कहाँ पे? टूर्नामेंट के बाद, मैच के बाद। रिंकू सिंह ने चौका मार दिया, नहीं उसके बाद इंडिया एशिया कप जीत गया। प्रेजेंटेशन का उसके बाद हम आके जैसे बाहर हम सेलिब्रेट कर रहे थे, और हर प्लेयर के अचीवमेंट पे हमने ताली बजाई, सीटी मारी। तिलक, कुलदीप, भाई को गाड़ी मिली, वो भी सेलिब्रेट किया हमने। तो अब इससे ज्यादा क्या चाहिए को, जो अचीव करना था यही थे चेन ऑफ। और एक बार देखा चैंपियन का बोर्ड आया और वापस चला गया, वो भी देखा। ठीक है, ये तो चलते रहता है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, टेक इट इन अ स्ट्राइड एंड मूव ऑन। सूर्या, अंसर अकरम, बोल न्यूज़ से। सूर्या, सबसे पहले तो क्रिकेट जो है वो एक बहुत मुस्बत किरदार अदा करती है, पॉजिटिव मैसेज देती है पूरी दुनिया में, और ये देशों को नज़दीक लाती है। ये जो आज हुआ है यहाँ पर, ये BCCI ने ऑफिशियल मेल ACC को की है कि हमने मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफ़ी नहीं लेनी। अगर ये ऑफिशियल है या आपका इंडिविजुअल अपना फैसला है? नहीं, ये पता नहीं मुझे, आप ईमेल के बारे में क्या बोल रहे हो, इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। ये हमने ग्राउंड पे ही कॉल लिया है, हमें किसी ने बोला नहीं है करने के लिए, और हम वेट कर रहे थे। आई थिंक आप टूर्नामेंट जीतते हो तो आप एटलीस्ट जो इतना अच्छा खेलते हो थ्रू आउट द टूर्नामेंट, अगर आप जीत गए हो तो आप ट्रॉफी डिजर्व करते हो या नहीं करते हो, आप ही बताओ। हाँ, बस आपने जवाब दे दिया, क्या चाहिए और। सूर्या, आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने तिलक वर्मा के बारे में बात नहीं की, संजू सैमसन, कुलदीप यादव, क्या थॉट्स हैं आपके? अब मैं अगर किसी एक प्लेयर को पॉइंट आउट नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि अगर आप एट द एंड ऑफ द डे देखो तो ये एक टीम स्पोर्ट है। आप अगर फर्स्ट गेम से अभी फाइनल तक देखो तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो क्रूशियल मोमेंट्स पे आके छोटा छोटा काम करके चले गए। स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, आई मीन ऑब्वियसली तिलक ने अनबिलीवेबल नॉक खेला फाइनल में, वी हैव सीन हिम डू दैट बिफोर। ऑल्सो कुलदीप जो कमबैक किया बॉलिंग में, वरुण ने बॉलिंग में कमबैक किया, संजू ने अच्छा प्रेशर एब्जॉर्ब किया। तो ये सिर्फ फाइनल की बात नहीं है, जो थ्रू आउट द जर्नी रही है सारे प्लेयर्स की, वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर जैसे किसी ने पूछा था अभी सवाल की सीढ़ी चढ़ते हुए आए, वैसे भी हम लोग धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए आए हैं। पहले लीग खेला, फिर सुपर 4 खेला, उसके बाद हम फाइनल में आए। तो छोटे छोटे मोमेंट्स थे, हमने उनको ग्रैब किया, उनके बारे में बैठ के बात किया एज अ टीम, बैटिंग ग्रुप, बॉलिंग ग्रुप, फील्डिंग ग्रुप, वही सब चीज़ों को अच्छा करने ट्राई किया, और एक कलेक्टिव एफर्ट, और हम यहाँ बैठे हैं, हंस रहे हैं। एक रीज़न दे दिया इंडिया को सेलिब्रेट करने के लिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। थोड़ा लेट हो गया, आप लोग ने पूछा नहीं, बट इट्स लाइक अ जेस्चर मेरी तरफ से। पता नहीं है कंट्रोवर्सी हो सकता है कि नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। आई एक्चुअली पर्सनली वांट टू गिव माय मैच फीस of all the games which I've played in this tournament to the Indian Army. Thank you to the Indian Army. जी, अब गुड मॉर्निंग करना है, गुड इवनिंग करना है? गुड मॉर्निंग। ओके जी, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सलमान, कमेजरेशंस। आप इस टूर्नामेंट को अगर आप पूरा 2-3 हफ्ते देखें तो डू यू व्यू इट एज अ सक्सेस या एज अ फेलियर? मेरे ख्याल से अप्स एंड डाउन रहे हैं, रोलर कोस्टर किस्म का टूर्नामेंट रहा है, और बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमको काम करने की ज़रूरत है। और अच्छी चीज़ ये है कि हमको अंदाज़ा है कि हमको कौन सी चीज़ इंप्रूव करनी है और कौन सी चीज़ें हमने अच्छी की हैं जिनको हमको आगे लेके चलना है।
तो कोशिश यही करेंगे जो चीज़ें गलत हुई हैं हमसे उस पर जाके बात करें और बैठें, उनको आगे अच्छा करने की कोशिश करें, और जो पॉजिटिव्स हैं उनको कंटिन्यू करें और आगे उनको ही मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करें। हाय सलमान, माय नेम इज़ सलमान फ्रॉम जीटीवी। मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान ने जब शुरू में बैटिंग की थी 10 ओवर तक बड़ा अच्छा स्कोर रहा है, लेकिन उसके बाद बैटिंग नहीं चल सकी। बॉलिंग की अगर बात करें तो बॉलिंग में पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा एक मैच था कि जिसके अंदर पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, विकेट्स भी ली, लेकिन एकदम मैच हाथ से चला गया। तो क्या समझते हैं इसमें हमारी बॉलिंग के अंदर ख़ास तौर पे ये कहा जा रहा है कि हारिस रऊफ को काफ़ी ज़्यादा स्कोर पड़ा, जिसकी वजह से आज का मैच पाकिस्तान हार गया? सर हमने स्टार्ट बहुत अच्छा किया दोनों इनिंग्स में, बॉलिंग और बैटिंग में भी, और दोनों इनिंग्स में आप कह सकते हैं कि हमने फिनिश उतना अच्छा नहीं किया जितना अच्छा हमको करना चाहिए था। और सर किसी भी इंडिविजुअल की वजह से हम मैच नहीं हारते, आप एज अ टीम हारते हैं, एज अ टीम अगर जीते हैं जीते हैं। तो हारिस हमारे लिए वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है, और अगर आज उनसे बॉलिंग नहीं हुई तो इट्स ऑलराइट, क्योंकि एनीवन कैन हैव अ बैड डे। सलमान अंसर अकरम बोल न्यूज़ से। पाकिस्तान ओवरऑल इस टूर्नामेंट में जो है वो कभी टॉप ऑर्डर जो है वो कोलैप्स होता है, कभी आज मिडल हो गया। ये जो बैटिंग का तो बहुत बड़ा लूप रहा है इस टूर्नामेंट में, और आप एक अंदाजे से लकी भी रहते हैं कि कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल हो जाती है चीज़। आज जिस तरह से हुआ है, पूरा मीडिया फोकस होगा ना ट्रॉफी लेने के ऊपर, और आप लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो दब जाएगी और आप पे इतना क्रिटिसिज्म नहीं होगा। सर हम लोगों पे क्रिटिसिज्म आपको होता है, ये ऐसे नहीं है कि जिन लोगों को मतलब क्रिकेट की समझ है वो क्रिकेट पे ही बात करते हैं, बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी हैं, और वो आई डोंट नो व्हाई वो चीज़ें होनी चाहिए जो हो रही हैं, लेकिन हम लोग क्रिकेट की बात ही करते हैं। हमको पता है कि हम लोगों ने इस टूर्नामेंट में बैटिंग अच्छी नहीं की और कौन सी चीज़ें हमको अप्रूव करनी है, और हम उन्हीं को देखते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो हम उन पर गौर नहीं करते। सलमान, बैड लक, बट पाकिस्तान टीम ने फाइट अच्छी की, आज क्रिकेट अच्छी की। कुछ गलतियां थी, बल्कि बैटिंग में कुछ गलतियां थी और बॉलिंग में भी हमने देखा, लेकिन आप क्या समझते हैं एज ए कैप्टन कहाँ टर्निंग पॉइंट था? आखिरी ओवर तक भी पाकिस्तान के हाथ में मैच तो था। नहीं, हमने क्रिकेट तो कह सकते हैं कि अच्छी खेली है, थ्रू आउट टूर्नामेंट अच्छी खेली है, लेकिन कई पैचेस में हम ऐसी जगह पर हमने स्ट्रगल किया है। जैसे आप कह सकते हैं कि हमने आज बैटिंग में भी बॉलिंग में भी स्टार्ट अच्छा किया, और बैटिंग में भी फिनिश अच्छा नहीं किया, और बॉलिंग में भी फिनिश अच्छा नहीं किया। तो आप वो कह सकते हैं कि दोनों ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर हम लोगों ने गेम को क्लोज करने का हमारे पास दोनों इनिंग्स में मौका था, लेकिन हमसे वो नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से वही टर्निंग पॉइंट है। सलमान, बैटिंग में भी पहले 10 ओवर जो है डोमिनेट किया पाकिस्तान ने, और बॉलिंग में भी, लेकिन आखिरी 40 बॉलों में हमारे 36 रन बने और उसमें 9 विकेटें गिरी। और फिर बॉलिंग में अबरार और साइम अयूब बहुत अच्छा कर रहे थे, तो वहाँ पे हारिस रऊफ का लाना वो जो थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि वहाँ पे से ही मैच मेरे ख्याल में शिफ्ट हुआ और वही शायद टर्निंग पॉइंट था। कह सकते हैं सर आप, क्योंकि जब आप हारते हैं तो चीज़ें ज़ाहिर बात है गलत जाती हैं तो आप हारते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों का जैसा स्टार्ट था, हम लोगों को यहाँ से रन थोड़े ज़्यादा बनाने चाहिए थे। और दूसरा ये है कि हारिस रऊफ पिछले मैच में आपने देखा होगा तो वो बेस्ट बॉलर था, और अगर आप अपने बेस्ट बॉलर को ही मौका नहीं देते तो फिर मेरे ख्याल से बाद में वो अगर उनको रन पड़ जाते तो फिर हम ये कहते थे कि अपने बेस्ट बॉलर को नहीं दिया। तो मुझे ऐसे लगा कि उस टाइम पे जो हमारा बेस्ट बॉलर है हमको वो रखना चाहिए, क्योंकि 6 ओवर में उनको 63 रन चाहिए थे। तो मुझे लगा कि अगर बेस्ट बॉलर ही हमें यहाँ पे लाना चाहिए, क्योंकि फास्ट बॉलर ने आपने देखा होगा पहले 6 ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। लेकिन आप कह सकते हैं कि हाँ, जब आप हारते हैं तो ये चीज़ें आती हैं। सलमान, अरफा फिरोज़। सलमान, आपसे पहले बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बैकबोन कंसिडर किया जाता था, लेकिन उन पर यह भी तनकीद की जाती थी कि स्ट्राइक रेट का मसला है, ये 20-20 ओवर खेले तो बाकी बैटर्स को मौका नहीं मिलता। उनके जाने के बाद हमने देखा कि एशिया कप में ऑन द ट्रॉट आपने 8 विकेटें गई, 9 विकेटें गई, आज तो पूरे ओवर भी नहीं खेल सके। एज ए कैप्टन क्या सलमान अली आगा ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को एशिया कप में मिस किया? सर यही टीम थी जो मतलब आप देखें एशिया कप से पहले बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी कर रहे थे, हम 180 भी कर रहे थे, 170 भी कर रहे थे। हम अमेरिका गए, वहाँ पर भी हमने रन किए, हमने होम पे सीरीज़ खेली, वहाँ पे भी किए, हमने इवन बांग्लादेश में 180 किए। तो किसी इंडिविजुअल की हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये टीम बहुत अच्छा कर रही थी पहले, और ये टीम इस टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंची है, ट्रांजिशन जीती है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम किसी प्लेयर को मिस कर रहे हैं ऐसा, लेकिन मेरे ख्याल से हमने आज फिनिश अच्छा नहीं किया, जैसे कह सकते हैं। अगर हम आज फिनिश अच्छा करें तो हम आज भी 170 कर सकते थे। तो ऐसा नहीं है, हमें लगता है कि ये टीम भी काफ़ी अच्छी है और इस टीम में काफ़ी पोटेंशियल है, और आगे जाकर आप देखेंगे कि ये टीम बहुत अच्छा भी करेगी। सलमान, आज नहीं ख़त्म कर सके, जब आप कप्तान बने थे और उसके बाद ख़ासतौर पे जब माइक हेसन ने टेक ओवर किया, तो एक चीज़ चल रही थी कि हमने अपनी एक नई ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है, और जिसमें रोल्स क्लैरिटी भी होगी कि किसको क्या है। तो एक ही सवाल के 2 पार्ट हैं। एक तो ये है कि हसन नवाज़ को क्या रोल दिया गया था जो वो पूरा नहीं कर सके, जिसकी वजह से वो टीम में अपनी जगह नहीं रख सके,
और दूसरा हुसैन तलत को, और आपको के लिए जो टीम ने क्या स्ट्रेटेजी में क्या रोल बनाया था, क्योंकि हमने पिछले 2 मैच जो देखे इंडिया के, वहाँ पे 90 पे एक आउट था 11वें ओवर में, आप और हुसैन आए। आज भी 13वें ओवर में अच्छा स्कोर लगा हुआ था, फिर आप और हसन आए और उसके बाद एक कोलैप्स हो गया। तो एक थॉट ये है कि शायद उस जगह के ऊपर आपके दूसरे बैटर्स आ सकते थे, लेकिन आप दोनों आए, तो आप लोगों को क्या रोल था इसके ऊपर अगर बता सकें। सर रोल तो क्लियर है, क्योंकि और आपने बोला कि मतलब मॉडर्न डे, या आप कह रहे हैं कि हमने भी आपने इतने सारे सवाल कर दिया, मुझे तो आपका सवाल भी भूल गया कौन सा सवाल था। हाँ, रोल सर सबके क्लियर है, रोल क्लियर है। हसन नवाज आप कह सकते हैं कि हम लोगों को ऐसा लगा कि ये जो पिचेस हैं इनमें थोड़ा सा मतलब बॉल स्लो आता है, और जो हुसैन तलत है उनके पास मतलब डिफरेंट शॉट्स हैं जो इस पिचेस पे यूज़ हो सकती हैं। हसन नवाज को भी पूरा मौका मिला था, उनसे उस तरह परफॉर्म उनसे नहीं हो सका, लेकिन वो गोइंग फॉरवर्ड आप देखेंगे पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट के मतलब फ्यूचर हैं वो, और मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसे प्लेयर हैं कि पाकिस्तान को मतलब आने वाले लॉन्ग फ्यूचर में हम उनको देखेंगे कि पाकिस्तान से इंशाल्लाह परफॉर्म करते हुए। इसी तरह ही हुसैन तलत भी हैं। रोल सबके सब क्लियर है, एग्जीक्यूशन में मसला हो सकता है, लेकिन रोल अभी भी सबके क्लियर है। सबसे पहले तो नईम गिलानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान टीम ने सिर्फ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने भी किया, आपने भी एज ए मीडिया मैनेजर किया, और जिस तरह आपने इंडियन मीडिया को भी सवालात करने का मौका दिया। मुझे इसलिए ये कहना पड़ रहा है कि आपसे थोड़ी देर पहले 35 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो इंडियन मैनेजर थे उन्होंने पाकिस्तानी सहाफ़ियों को सवाल नहीं करने दिया। तो मैं ये करना चाहता हूँ, जी नईम भाई यही फ़र्क है कि हमें सवाल नहीं करने दिया, तब भी हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये फ़र्क है उस दिन आप जा रहे थे तब भी आपसे ऐसी सवाल हुआ। मैं ये जानना चाहता हूँ सलमान, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का आपने मुजाहरा किया और हैंडशेक के हवाले से भी पाकिस्तान का बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस रहा। उसके बाद आज आपने ट्रॉफ़ी के साथ भी अलग तस्वीर खिंचाई, अकेले तस्वीर खिंचवाई, और उसके बाद आज चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड उन्होंने काफ़ी इंतज़ार किया, और अब से थोड़ी देर पहले जब भारतीय टीम के कप्तान आए उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने 7 तारीख को हैंडशेक किया था चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन आज उन्होंने ट्रॉफ़ी क्यों नहीं ली है उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आप पैगाम लेकर जा रहे हैं, क्योंकि प्लेयर्स तो एम्बेसडर होते हैं अपने मुल्क के, और दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट डिप्लोमेसी का किरदार अदा किया है। एज ए कैप्टन पाकिस्तान के लीडर क्या कहना चाहेंगे? सर जो इस टूर्नामेंट में हुआ है मुझे लगता है कि वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। अगर आप क्रिकेट को देखें तो उनको ऐसे लग रहा है कि वो हैंडशेक नहीं कर रहे, ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो वो हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। नहीं सर, वो क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट है, और जो क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट करता है मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जाकर सामने आती ही आती है, और आई एम वेरी श्योर कि वो सामने आएगी। और जो आज भी उन लोगों ने किया है मेरे ख्याल से वो मतलब एक अच्छी टीम जैसा करती नहीं है, क्योंकि जो अच्छी टीम्स हैं वो वैसे करती है जो हमने किया, जैसे अकेले जाकर ट्रॉफी के साथ शूट किया और उसके बाद भी हम वहाँ जाकर खड़े रहे, अपने मेडल्स लिए। तो वट एवर दे आर डूइंग विद द गेम, आई थिंक दैट्स जस्ट बियॉन्ड, लाइक आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू यूज़ वेरी हार्श वर्ड, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू द गेम, नॉट टू एनीवन. If they are thinking they are doing disrespect to us, that's like, I think they are wrong there. They are disrespecting the game, which is like, I'm sure no one is going to obviously going to second that. Yeah. Well, he did shake hand to me when we were obviously doing a press conference at the start of the tournament, but yeah, when we were doing like referee की meeting होती है उसमें भी किया था. But yeah, when obviously they come to the world, जब सबके सामने आते हैं तो फिर नहीं करते हैं. I'm sure he अगर उस पे हो तो वो करे, क्योंकि obviously he has a different, उसको जो instruction है मेरे ख्याल से वही वो follow कर रहे हैं, which is fine. सलमान, हमने भी देखा है कि जिस तरह से स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का जो उसकी साख को नुकसान पहुंचाया गया, आप समझते हैं कि ये चीज़ें आईसीसी को भी इसका नोटिस लेना चाहिए और इसके ऊपर कोई सख्त कोई रद्द-ए-अमल आना चाहिए और कोई कानून बनना चाहिए ताकि इस तरह की चीज़ें पहले ना हो? सर ये पहले दफ़ा ही हो रहा है, मैंने तो मतलब आज तक अपनी लाइफ में देखा ही नहीं ऐसे, ना टीवी पर ना कभी किसी गेम में। ये जो अभी इस टूर्नामेंट में गेम के साथ हुआ, आई डोंट नो कि कहाँ जाके स्टॉप हो गई हैं चीज़ें, मुझे नहीं सब पता। इसको देखकर कोई और टीम्स भी स्टार्ट करेंगी, आई डोंट नो, होपफुली नहीं करें, लेकिन वॉट एवर हैपन्ड इन दिस टूर्नामेंट आई थिंक वॉज वेरी वेरी बैड। होपफुली इट्स इन सम स्टेज कहीं ना कहीं जाकर ये चीज़ें स्टॉप हों, अदरवाइज इट्स रियली बैड।
बिल्कुल। आप बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में जो नहीं हुआ, हैंडशेक गेट की बात की आपने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि आपने ऐसा नहीं देखा। दो पार्ट में सवाल है, क्या आपने इससे पहले देखा है कि किसी चैंपियन टीम को ट्रॉफी ना मिलना और किसी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में कोई टीम प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस स्किप करे, अपने प्रोटोकॉल्स जो है वो स्किप करे? क्या आपने इससे पहले वो सारी चीज़ें कभी देखी है? सर वो सारी चीज़ों का कौन सी था? आप मतलब सवाल कर रहे हैं, ये स्टार्टेड किसने किया? ये देखें ना आपको ये देखना है कि स्टार्ट किसने किया। सर हाथ मिलाना तो रूल नहीं है। सर अगर एसीसी का प्रेसिडेंट है तो वही ट्रॉफी देगा ना। अगर आप उससे ट्रॉफी नहीं लेंगे तो फिर कैसे मिलेगी ट्रॉफी? बात तो ये है। और आप भी कह रहे हैं कि प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, तो वो जो चीज़ें जो ग्राउंड में हुई थी उसके बाद की वो चीज़ें थी ना, हमने स्ट्रेट वे थोड़ी स्टार्ट की थी। जो ग्राउंड में चीज़ें हुई उसके बाद ही वो स्टार्ट हुई। तो इट्स नॉट अबाउट कि वो कर रहे हैं या कौन कर रहा है, इट्स अबाउट कि गेम के साथ गलत हो रहा है। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ, गेम के साथ गलत नहीं होना चाहिए। आप ओमान से जीतते हो, आप श्रीलंका से जीतते हो, आप यूएई से जीतते हो, आप बांग्लादेश से जीतते हो, आप भारत से 3-0 से हारते हो, पिछले 8 मैच 8-0 से हारते हो। इसका एनालिसिस किया है आपने अपनी टीम का? जी सर बिल्कुल किया है। हम लोगों को पता है कि हम अभी उनके खिलाफ अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे। और ऐसे ही आप देखेंगे कि अगर आप ओवरऑल जाके देखेंगे तो अभी भी हम काफ़ी अहेड हैं उनसे। तो इसका मतलब ये है कि हर टीम का एरा होता है, अभी शायद उनका एरा चल रहा है। और ये क्रिकेट ऐसा है कि एरेज चलते हैं और उसके बाद जैसे हम लोग इनको 90s में हराते थे, वैसे आज शायद कह लें कि उनका एरा है तो वो हम लोगों को इस तरह हरा रहे हैं। एंड यू विल सी वेरी सून हम लोग उनको ऐसे रहना शुरू कर देंगे जैसे वो भी हमको हरा रहे हैं। तो फिर गेम क्रिकेट की ऐसी है कि ये एराज के साथ चलती है और ऐसे ही चलती रहेगी आगे भी। सलमान भाई, जैसे आपने बोला कि क्रिकेटर्स एम्बेसडर्स होते हैं अपने अपने मुल्क के लिए, तो ये जो भी यहाँ पे हुआ, स्पेशली आज ट्रॉफी के सेरेमनी के टाइम पे हमने जो भी देखा है, तो आप लोग यंग क्रिकेटर्स के लिए भी रोल मॉडल्स है। तो ये कितना एक नेगेटिव एक इमेज जा रहा है यहाँ पे, जो भी है। मैं दोनों टीम के हवाले से मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं एज ए क्रिकेट के हवाले से बोल रहा हूँ। सर मैं भी अगर आप पाकिस्तान का कैप्टन अभी नहीं हूँ और क्रिकेट फ़ैन हूँ, तो मैं इस चीज़ को सर मैं सेकंड नहीं करूँगा इस चीज़ को, क्योंकि ये गलत है। कोई बच्चा देखेगा घर में बैठा हुआ या पाकिस्तान से या इंडिया से, तो उसके लिए हम क्या मैसेज दे रहे हैं सर? हम अच्छा मैसेज तो दे ही नहीं रहे, क्योंकि हम लोगों को तो लोग रोल मॉडल समझते हैं। तो अगर हम रोल मॉडल ही ऐसे करना शुरू कर देंगे तो हम फिर किसी को इंस्पायर तो नहीं कर रहे। अगर इंस्पायर भी कर रहे हैं तो गलत चीज़ पे कर रहे हैं। तो मैं तो इस चीज़ को सर अभी भी बोलता हूँ कि आई थिंक जो भी हुआ वो गलत हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो आगे अब किया जिन्होंने, यार ज़ाहिर बात है सवाल उनसे होने चाहिए। आप मुझसे कर रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को सर कभी भी नहीं कहूँगा कि अच्छी चीज़ है। और हम एज ए टीम, सारी टीम जो है, हम लोग जो ये अपनी मैच फीस है हम डोनेट कर रहे हैं। वो लोग जब इंडियन अटैक हुआ था उसमें हमारे सिविलियन और हमारे बच्चे उसमें अफेक्टेड हुए थे, हम सब ये